Good morning, student. In today's lecture, we will discuss the next topic after binding energy, that is radioactivity. Student, this topic is deleted, but the basic of alpha, beta, and gamma decay I have to explain to you. For that, I am giving you some idea about it. So, what is radioactivity? It is a property by virtue of which a heavy element disintegrate by itself without being forced by an external agent. यानी कोई भी एक हैवी एलिमेंट, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, देन वी एक्सप्लेन कि हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम दैट गेट disintegrate by itself. Why it get disintegrate by itself? In order to get the stability. Right? So radioactivity is a process of disintegration of a heavy element into lighter nuclei without being forced by an external agent, जिसमें आप इसको किसी भी external agent से force नहीं apply करते. No force is applied on it. It is a spontaneous process. So now what is the cause of radioactivity? क्या है cause? Cause है radioactivity का as the mass number increases. ठीक है, तो students, the number of proton ratio in the nucleus increases. Number of proton get increased. If number of proton get increased, then what happens? Repulsive forces become more than the nuclear forces. So due to which the repulsion takes place, and this causes the instability of the heavy nuclei, due to which it get disintegrate. आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने शुरू हो जाते हैं? इंक्रीज एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटोन में कौन सा फोर्स होगा आपका? रिपल्सिव. और ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स द न्यूक्लियस बिकम इनस्टेबल, राइट, अनस्टेबल, और द instability arises. And to get the stable, there are 3 types of decay takes place: alpha decay, beta decay, and gamma decay. What do you mean by alpha? Alpha decay, alpha क्या है आपका? हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम 4 2. बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन. गामा क्या है? एनर्जी. तो अब हम इसको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे. अल्फा डिके क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच एन अल्फा पार्टिकल इज emitted आउट फ्रॉम दिस. अल्फा डिके इज द emission of, it is the phenomena of emission of alpha particle from the atom. This is XAZ, mass number XAZ है, तो यहाँ आ जाएगा YA-4 Z-2. This is parent nuclei. इसको कौन सा न्यूक्लियाई बोलेंगे? पेरेंट न्यूक्लियाई. और इसको कौन सा बोलेंगे हम? डॉटर न्यूक्लियाई. और देन हीलियम पार्टिकल इज emitted with the release of energy. और एनर्जी रिलीज क्यों होती है? एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट. What is the energy release here? Mass of this X atom, mass of X atom minus mass of Y atom minus mass of alpha particle is not same. तो कुछ mass defect आ जाता है. This Q is equal to delta M into C square. Delta M is the mass defect. Mass of this X atom is not equal to the mass of these two. Right, mass of reactant is not equal to mass of product. So mx minus my minus mass of alpha particle. So after this I will discuss the example for this also. So this is a parent atom, ये x है z है, ठीक है. इसको हमने disintegrate किया. This is Ya-4 Z-2. This is 2 Z-2 और प्लस क्या बन गया? ये आपका हीलियम पार्टिकल. अगर ये इस तरफ जा रहा है लेफ्ट में, तो ये कहाँ जाएगा? राइट में. Why it goes toward the right? To make the momentum conserve. To make the momentum conserve. Momentum को क्या करना है? कंजर्व करने के लिए अगर एक की वेलोसिटी राइट साइड है तो दूसरे की क्या होगी? लेफ्ट साइड. तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसका. दिस इज यूरेनियम 238. स्टूडेंट, इफ आई विल राइट इट XAZ, this is Ya-4 Z-2 plus helium-4 2 with the release of energy. Like in this way, uranium-238, when helium comes out, then it becomes thorium-234 90. Now, in this process, this is a energy release. This is delta M into C square. तो डेल्टा M क्या होगा? मास ऑफ एटम X माइनस मास ऑफ एटम Y माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू C स्क्वायर. अब हम करेंगे बीटा डिके, राइट. इसका एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगी, इसमें न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं. नाउ बीटा डिके क्या? इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस. किसी भी एटम से बीटा डिके में क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन. सो XAZ YAZ+1
plus electron is released with the release of energy. स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन आता है बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. ये सारी कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस है? न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. सो हाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड? सेकेंड थिंग इज कि ये आई आपकी जब इस एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट ऑबिड, राइट. ये हम पहले डिटेल में कराते थे बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग इन इट्स डिटेल. एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट ओबेड. सेकेंड आया इसमें प्रॉब्लम, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड. इफ वी सी बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम, अगर हम बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम देखें, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स emitted and it's plot with energy, right. तो most of the beta particles having very small energy. बहुत बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी कम है और वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द एंड पॉइंट मैक्सिमम एनर्जी. वेयर दैट एनर्जी गोज, इट मीन्स दैट एनर्जी इज शेयर्ड विथ सम अनदर पार्टिकल. तो बीटा डिके में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑल्सो जनरेटेड, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिके, बीटा माइनस डिके एंड सेकेंड इज बीटा प्लस डिके. तो बीटा प्लस डिके में क्या रिलीज होगा? पॉजिट्रॉन. और इसमें क्या रिलीज होंगे? इलेक्ट्रॉन, राइट. दीज टू हैविंग द सेम मासेस एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो बीटा, दिस इज एक्स ए जेड वाई ए जेड प्लस वन प्लस विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द रिलीज ऑफ, यहाँ जीरो लिख लेते हैं, यहाँ माइनस वन विद द रिलीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. इसमें क्या निकलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो. और इसमें एक्स ए जेड वाई ए जेड माइनस वन प्लस पॉजिट्रॉन with the release of न्यूट्रिनो. यहाँ पर क्या रिलीज होंगे? न्यूट्रिनो. यहाँ क्या रिलीज होंगे? एंटी न्यूट्रिनो. तो इसमें एनर्जी इक्वली शेयर्ड होगी किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में. और एनर्जी बिकम कंजर्व. जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन की आई और एंगुलर मोमेंटम की, बोथ ऑफ दीज गेट omitted by using these or with the emission of this, right. तो ये आपका बीटा डिका, बीटा माइनस और बीटा प्लस डिके हो गए. तो मोस्टली जो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है लाइक दिस वन, बीटा माइनस डिके. नाउ व्हाट हैपन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज व्हाट हैपन्स इन बीटा डिके, अ न्यूट्रॉन इज चेंज. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन इज चेंज इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन विद द रिलीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. और इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन एंड विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रिनो, राइट. तो इनसाइड न्यूक्लियस ये कन्वर्जन होती है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? एमिट आउट. सो यू मस्ट नो व्हाट इज दिस. यहाँ एटॉमिक नंबर कम हो गया 1 से और यहाँ एटॉमिक नंबर क्या हो गया? +1. तो अगर इसका एग्जाम्पल ले ले बीटा माइनस डिके का, फॉस्फोरस 3215 और इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन निकला 3216 विद द रिलीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. बीटा प्लस डिके सोडियम 2211 और यहाँ से नियॉन 2210 विद द रिलीज ऑफ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. नेक्स्ट आता है गामा डिके. गामा डिके क्या है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ गामा रे फोटोन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस. इसमें गामा रेज निकलती. गामा रे क्या है? एनर्जी. गामा रे क्या है? एनर्जी. तो दिस इज ऑलवेज, दिस डिके इज फॉलोड आफ्टर, it is followed by alpha and beta decay. ठीक है, पहले अल्फा बीटा डिके होंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? गामा डिके. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट. सो व्हेन न्यूक्लियस कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट देन इट एमिट गामा रेडिएशन मींस फोटोन. यहाँ हमने कोबाल्ट 6027 का क्या किया? डिसइंटीग्रेट. तो क्या आ गया? निकल 6028 विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो. अब जो ये आपका निकल बनता है दैट इज इन डबल एक्साइटेड स्टेट. तो पहले ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आएगा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर दोबारा आया निकल 6028 विद द रिलीज ऑफ 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइनली इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट. यहाँ निकल फिर ये ग्राउंड स्टेट में आया विद द रिलीज ऑफ दिस एनर्जी, देन अगेन with the release of 1.33 mega electron volt. So student, you can learn it directly. Then I am going to discuss one very important question. This is NCERT example. This is NCERT example. Following masses are given to you. ये यूरेनियम का मास गिवन है आपको 238.05079. एग्जाम्पल 13.6.
थोरियम का गिवन है 234.04363, प्रोएक्टिनम इज गिवन टू यू, हीलियम इज गिवन टू यू, प्रोटॉन इज गिवन टू यू. PA स्टैंड फॉर प्रोएक्टिनम. अब बोला है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238. तो पहले आप यूरेनियम 238 का क्या करेंगे, अल्फा डिके 92, इसका अल्फा डिके होगा हीलियम 42, और विद यहाँ पर आपका जो एटम बनेगा दैट इज थोरियम, मास नंबर 234 एंड इट इज 90. अब आपको निकालिए एनर्जी. एनर्जी रिलीज निकालने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट क्या होगा, मास ऑफ यूरेनियम एटम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा. अल्फा यानी हीलियम, हीलियम पार्टिकल. तो यूरेनियम का मास आपको गिवन है, आप ये यूरेनियम का मास कितना है 238.05079. थोरियम का है आपका 234.04363. फिर अल्फा पार्टिकल का है 4.00260. ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 0.00456 यूनिट. ये एटॉमिक मास यूनिट आ गया. तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी या क्यू कितना होगा, दिस इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. अब स्टूडेंट हम इसमें डायरेक्टली कन्वर्जन यूज करेंगे. 1 AMU किसके इक्वल होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. तो आप इसको 0.00456 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब इसके सेकेंड पार्ट में शो दैट यूरेनियम 23892 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट अ प्रोटोन. प्रोटोन का मतलब क्या है, H11. तो आप पहले इक्वेशन लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, 23892 विद द रिलीज ऑफ प्रोएक्टिनम बनेगा H11. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 237 एंड दिस इज 91. तो अब आप इसमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे. दिस इज मास ऑफ यूरेनियम एटम माइनस मास ऑफ प्रोएक्टिनम माइनस मास ऑफ प्रोटोन, राइट. तो जब आप इसमें मासेस पुट कर लेंगे तो ये आएगा माइनस 0.00825 यूनिट. तो ये नेगेटिव मास डिफेक्ट आपको क्या बता रहा है, दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है इंटू 931 तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपके पास ये आ जाएगा -7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी नेगेटिव, यू आर गेटिंग द एनर्जी नेगेटिव, and this negative energy means it is which reaction, it is not a spontaneous reaction. Energy is required for this, it is not a spontaneous process, so you need some energy and in this way you can proceed for the numerical. अब आता है नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई. लाइक यूरेनियम 23592 है, इस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, देन इट फॉर्म बेरियम 14156 प्लस क्रिप्टॉन 9236 विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन विद द एनर्जी. अब एनर्जी आपने कैलकुलेट करना, अभी आपको मैंने बताया मास ऑफ यूरेनियम मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बन जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बेरियम का, क्रिप्टॉन का, 3 न्यूट्रॉन्स का. तो हमने डेल्टा एम निकाला मास ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इसमें से इसको क्या कर दिया हमने, माइनस करेंगे तो यार है 0.2153 AMU, और 1 AMU कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आएगी 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन न्यूक्लियर फ्यूजन में स्टूडेंट ये आपको पता है, फ्यूजिंग ऑफ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई. तो इसमें आप ये रिएक्शंस लर्न कर सकते हो, जिसमें प्रोटोन कंबाइन होकर ड्यूट्रॉन बना विद द रिलीज ऑफ दिस एनर्जी. ड्यूट्रॉन हीलियम 3, ड्यूट्रॉन ट्रीटियम 4 प्रोटोन और हीलियम 4, राइट. सो इन दिस वे you can learn these reaction directly. So this is all about the atom and nuclei. Thank you. Have a nice